بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 کلاس کے اسٹوڈنٹس کا ٹاپک کل ہم نے پہلے گروپ کو لسننگ اور اسپیکنگ سے متعلق ایک ٹاپک جو ہے وہ سمجھا دیا تھا۔ آج ہم لسننگ اور اسپیکنگ سے متعلق جو آپ کی بک کے اندر پیج نمبر 10 پر 4 ٹاپک دیے گئے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ 4 گروپ بنا کے انہیں یہ ڈسکشن کروانی ہے۔ اس سلسلے کے دوسرے گروپ کا ڈسکشن کا موضوع اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ موضوع ریزن فار یوزنگ انفیئر مینز ان ایگزام۔ ٹھیک ہے، ریزن فار یوزنگ انفیئر مینز ان ایگزام، یعنی وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اپنے امتحانات میں انفیئر مینز، چیٹنگ یا اور دوسرے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو دوسرا گروپ جو بنا ہے ان بچوں کو ہم یہ موضوع دیں گے، ریزن فار یوزنگ انفیئر مینز ان ایگزام۔ تو میں ان بچوں کے لیے کچھ ہنٹس اور کچھ مواد یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ بچے اس کو غور سے سنیں اور اس کا ایک پرنٹڈ ڈاکومنٹ بھی میں کلاس میں مہیا کر دوں گا۔ تو وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس امتحانات میں انفیئر مینز استعمال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ کورس از not delivered properly، یعنی اسکولز میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ پراپر پڑھائی نہیں ہوتی اور اسٹوڈنٹس اپنے ٹاپک کو، اپنے سبجیکٹ کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا، اس کی گرپ مضبوط نہیں ہوتی، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جان پائے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں نے جو ڈاکومنٹ لکھا ہے وہ اس میں لکھا ہے کہ اٹ از دا مین ریزن آف یوزنگ انفیئر مینز ان ایگزام۔ ان اسکولز teaching methods are not suitable. Topics are not delivered properly. Teachers are unable to give full understanding about topics and syllabus. Students are compelled، یعنی طالب علموں پر زور دیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس آر کمپیلڈ ٹو لرن بائی ہارٹ، کہ وہ یاد کریں۔ اسٹوڈنٹس کو اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ بس وہ یاد کریں، انسٹیڈ آف انڈرسٹینڈنگ، بجائے اس کے کہ انہیں سمجھا جائے یا سمجھایا جائے۔ اس بات پہ زور دیتے ہیں سارے اساتذہ کہ بس وہ اس سوال کا جواب یاد کر لیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اٹ از امپاسبل فار اسٹوڈنٹس، اب بچوں کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے ٹو میک رٹا آف ہیوج سلیبس، اتنا بڑا سلیبس ہے اس کا وہ رٹا ماریں، اسے وہ یاد کریں۔ ٹھیک ہے، لفظ ٹو لفظ، ورڈ ٹو ورڈ اس کو دھیان میں رکھیں، اپنے ذہن میں حفظ کر لیں، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو دس از دا مین ریزن۔ کیا ریزن ہے؟ کورس از ناٹ ڈیلیورڈ پراپرلی، یعنی ان اسکولس میں جو ٹیچرز ہیں وہ دراصل اپنا ٹاپک، اپنا سلیبس صحیح طور پر ڈیلیور نہیں کر پاتے، پراپرلی ڈیلیور نہیں کر پاتے، وہ ٹاپک کو سمجھاتے نہیں ہیں، اس ٹاپک کی کو کھولتے نہیں ہیں، اس میں بچوں کو اتارتے نہیں ہیں، بلکہ کس بات پر کمپیل کرتے ہیں؟ دے کمپیل دیٹ لرن دس بائی ہارٹ، کہ وہ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا زبانی یاد کتنا کریں؟ پورا سلیبس۔ ٹھیک ہے، انگلش کے جو ہے وہ 8 چیپٹر، فزکس کے جو ہے وہ 10 چیپٹر، اور اردو کے جو ہے وہ 18 چیپٹر، 20 چیپٹر، اسلامیات کا جو ہے اتنا ہیوج کام۔ تو اسٹوڈنٹس آر انیبل ٹو میک
full time ratta of huge and a big syllabus, वो नहीं मैनेज कर पाते। यही वजह है कि उनका जो रुझान है फिर चला जाता है कि वो एग्ज़ाम में अपनी ज़हानत इस्तेमाल करने के बजाय दे यूज़ सम अनफेयर मीन्स टू पास द एग्ज़ाम। ठीक है। दूसरी वजह जो है वो क्या है, इसको भी समझ लीजिए। स्लो लर्नर, स्लो लर्नर्स। ठीक है। अनफेयर मीन्स क्यों यूज़ करता है एक स्टूडेंट? इसलिए कि वो स्लो लर्नर होता है, वो सही नहीं होता, वो अपने टॉपिक्स को हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है। इस सिलसिले में जो टेक्स्ट मैं समझा पाता हूँ बच्चों को वो ये है, इन प्राइमरी क्लासेस मैनी स्कूल्स promote their students every year in next class without producing abilities in them। बच्चों में एबिलिटीज़ प्रोड्यूस करने के बजाय हर साल उन्हें किसी न किसी तरह पास करके प्रमोट करके अगली क्लासेस में भेज दिया जाता है। ऐसा प्राइमरी में होता है। When students come in secondary classes, ठीक है, जब स्टूडेंट सेकेंडरी क्लासेस में आते हैं, दे आर अनएबल टू हैंडल देयर स्टडीज़। अब क्योंकि वो बेस नहीं जानते, अब वो क्योंकि फोकस उनका नहीं है, तो और कोर्स उनका बड़ा होता जा रहा है, ह्यूज होता जा रहा है, तो दे आर अनएबल टू हैंडल देयर स्टडीज़। दे हैव रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉब्लम्स। इवन ये कि हम सेकेंडरी में देख रहे होते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं। दे आर अनएबल टू रीड अ टेक्स्ट इन 12 सेकेंड, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते पैराग्राफ पढ़कर। ठीक है। दे आर अनएबल टू हैंडल देयर स्टडीज़, दे हैव रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉब्लम्स, दे हैव फोकस प्रॉब्लम। को फोकस ही नहीं होता, वो 10 मिनट बोर्ड पर टीचर की बात कंटिन्यूसली सुनने के लिए एबल नहीं होते। दे हैव फोकस प्रॉब्लम, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। वो पैराग्राफ पढ़ के उसमें क्या लिखा है दे डोंट नो, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। दे आर ओनली एबल टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम बुक्स इनटू नोटबुक। उनकी सलाहियत सिर्फ ये होती है कि वो किताब में से टेक्स्ट को कॉपी करके अपनी कॉपी में लिख लें। सही। इस पोजीशन में जब स्टूडेंट्स बड़ी क्लासेस में आते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं कि अपने एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करें। ठीक है। दूसरा जो वजह थी वो ये थी। तीसरी वजह, बहुत अहम वजह है तीसरी, वो है डिग्री ओरिएंटेड सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है वो डिग्री ओरिएंटेड है। सही है। उसको एबिलिटी ओरिएंटेड नहीं है, वो नॉलेज ओरिएंटेड नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए उसका पैमाना नापने का जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी डिग्री है। ठीक है। तो इसको मैंने इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी का ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। सोसाइटी प्रेफर्स डिग्री टू एजुकेशनल एबिलिटीज़। सोसाइटी जो है एजुकेशनल एबिलिटीज़ के मुकाबले में डिग्री को प्रेफर करती है, प्रेफरेंस देती है। सो एवरी स्टूडेंट ट्राइज टू अचीव डिग्री। नतीजा ये निकलता है कि हर स्टूडेंट डिग्री हासिल करने की कोशिश में लग जाता है। मार्क्स, ग्रेड एंड पोजीशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एजुकेशनल एबिलिटीज़। तालीमी काबिलियत के मुकाबले में ग्रेड अहम होते हैं, मार्क्स अहम होते हैं, डिग्री अहम होती है। ठीक है। सो एवरी वन स्ट्रगल अ डिग्री बाय हुक्स एंड क्रूक्स। जब सोसाइटी ऐसी हो तो माशरे का फिर हर फर्द किसी भी तरह से हो, बाय हुक्स एंड क्रूक्स का मतलब गलत सही तरीक़े से बस वो हासिल करना चाहता है एक डिग्री, क्योंकि उसकी नज़र में यही तालीम का
मकसद है। ठीक है, तो ये था तीसरा वजह जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बजाय इसके कि वो पढ़ें, गौर व फिक्र करें, अंडरस्टैंड करें, वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम को मैनेज करने और उसके ज़रिए से डिग्री हासिल करने की दौड़ में लग जाते हैं। ठीक है, चौथी वजह जो है वो ये है, एजुकेशन इज़ अ बिज़नेस नॉट अ सर्विस। क्योंकि अनफेयर मीन्स में ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल ऑनर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, पैसा चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल ऑनर्स सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिज़नेस के लिए, अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं बल्कि बिज़नेस के लिए काम करते हैं। ठीक है, इस बारे में मैंने लिखा है, मैनी प्राइवेट स्कूल ऑनर्स टेक देयर स्कूल एज अ मीन्स ऑफ बिजनेस इंस्टीड ऑफ सर्विसेज। यानी वो इसको सर्विस नहीं समझते, ठीक है, बल्कि वो इसको एक बिजनेस समझते हैं, अपने इदारे को। नंबर ऑफ पासिंग आउट स्टूडेंट्स विद हाई ग्रेड्स एंड पोजीशन फ्लोरिश देयर बिजनेस। उनके स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हाई ग्रेड से पास होते हैं, ज़्यादा नंबर लेकर पास होते हैं, उतना ही उनका बिजनेस फ्लोरिश होता है और उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा बता पाते हैं लोगों को कि हमारे मैट्रिक में A1 ग्रेड 57 आए हैं, हमारे पास नाइन्थ के अंदर इतने परसेंटेज से बच्चे पास हुए हैं। तो क्योंकि उनकी नज़र में स्कूल एक बिज़नेस होता है और उस बिज़नेस के अच्छा चलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और लोग रिज़ल्ट्स को देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये स्कूल बहुत अच्छा है। ठीक है, नंबर ऑफ पासिंग आउट स्टूडेंट्स विद हाई ग्रेड्स एंड पोजीशंस फ्लोरिश देयर बिजनेस, सो दे यूज़ एवरी अनफेयर मीन्स टू अचीव देयर बिजनेस गोल। ठीक है, तो तकरीबन चौथा जो रीज़न है अनफेयर मीन्स को इस्तेमाल करने का या होने का, उसकी एक वजह ये भी है कि प्राइवेट स्कूल मालिकान ख़ुद इस अनफेयर मीन्स का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पांचवें रीज़न की, और वो पांचवा रीज़न भी बहुत अहम है, वो है कॉपी कल्चर। कॉपी कल्चर, ठीक है, कॉपी कल्चर से मुराद क्या है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो पूरा कल्चर ही कॉपी का है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ने वाला होता है, जब वो पहली बार इम्तिहान देने जाता है तो उस कल्चर का शिकार हो जाता है। सही है, वो लाख पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब इम्तिहान का माहौल देखता है, कल्चर को देखता है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि अब वो स्टडीज़ करे, अब वो अंडरस्टैंडिंग करे, अब वो जो है इम्तिहान की तैयारी करे, बल्कि अब वो भी उसका पार्ट बनने की कोशिश करता है। तो इसको इंग्लिश में हमने इस तरह लिखा है, इस्टेब्लिश्ड कॉपी कल्चर, जो इस्टेब्लिश हो गया है पूरे शहर में, सूबे में। इस्टेब्लिश्ड कॉपी कल्चर मोटिवेट न्यू कमर्स टू अडॉप्ट दिस कल्चर। न्यू कमर्स को वो मोटिवेट करता है कि वो भी इसी कल्चर को अडॉप्ट कर लें। इन एग्ज़ाम सेंटर अ वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट इज़ हिट बाय दिस कल्चर। जो बच्चा तैयारी करके जाता है, बहुत अच्छा पढ़ के जाता है, जैसे ही वो एग्ज़ाम के सेंटर में पहुंचता है उसे यही कल्चर हिट करता है एंड मोटिवेट्स हिम, और फिर यही कल्चर उसको मोटिवेट करता है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर, कि वो भी इसी कल्चर का पार्ट बन जाए। लिहाजा वो भी अगले दिन बजाय इसके कि इम्तिहान के पेपर की तैयारी करे, रिपीटेशन करे, वो अनफेयर मीन्स को यूटिलाइज करने की प्लानिंग करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पांचवा वजह। छठी वजह, छठा जो रीज़न हम समझते हैं है वो है एग्ज़ाम सिस्टम compel for ratta।
यानी हमारे जो बोर्ड के अंदर एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो रट्टे पर जोर देता है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में लिखा, और एग्जाम सिस्टम प्रमोट्स रट्टा, इट इज़ नॉट फॉर जजिंग स्टूडेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ये इम्तिहान का निज़ाम बच्चे की ना नॉलेज को जज करता है ना उसके अंडरस्टैंडिंग को जज करता है, बल्कि वो ये देखता है कि बच्चे को याद कितना है। इट इज़ ओनली फॉर जजिंग रट्टा एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, तो बच्चे की रट्टे की एबिलिटी को जांचना चाहता है, ठीक है। और वो रट्टा जब बच्चे से लगता नहीं है तो उसके बाद ऑप्शन ही नहीं होता कि सिवाय इसके कि वो अनफेयर मीन्स यूज़ करे और इम्तिहान पास करने के लिए जो कुछ भी उससे बन पड़ता है वो करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। ये छठा रीज़न है। सातवां रीज़न वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनिंग अथॉरिटी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनकी बड़ी जान पहचान होती है, ठीक है, या जो गवर्नमेंट के आला ओहदों पर फाइज होते हैं, ठीक है, और वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं, उनको मज़ा आता है, ठीक है। मैंने लिखा है इसमें, सम पीपल फील हैप्पी, कुछ लोग खुश होते हैं, टू एंटरटेन देयर अथॉरिटी, दे मिस यूज़ देयर अथॉरिटीज़ टू टेक बेनिफिट्स फॉर देयर रिलेटिव्स। अगर कोई उनकी जान पहचान वाला है तो वो उसको पास कराने के लिए अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। दे थिंक अबाउट ऑल अनफेयर मीन्स एज देयर राइट्स, उनका ख्याल ये होता है कि जितने भी अनफेयर मीन्स हैं वो उनका ज़ाती हक़ है, वो उसको अपने हक़ के तौर पर यूज़ करते हैं और किसी भी तरह से अपने रिलेटिव को, अपने जान पहचान वालों को नकल के अंदर सपोर्ट करते हैं, किसी न किसी तरह से कह के, डरा के, धमका के अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये वो 7 रीज़न्स हैं जो अनफेयर मीन्स की तरफ स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बुक के अंदर दूसरा ग्रुप था जिसको हमें डिस्कशन के लिए आमादा करना है, उसका मौजू था रीज़न्स फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्ज़ाम। तीसरा जो मौजू है इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे और उसका मौजू है इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्ज़ाम्स ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है जब वो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है। यकीनन जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, सिर्फ पास होता चला जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये भी एक जो है वो बड़ा मौजू है। तो क्लासरूम के अंदर जो तीसरा ग्रुप है उसको हमें ये वाला टॉपिक देना है। अगली क्लास में मैं तीसरे ग्रुप के इस टॉपिक को का मटेरियल बच्चों के साथ डिस्कस करूँगा और फिर चौथा आखिरी हमारा टॉपिक होगा इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑन द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर ये अनफेयर मीन्स कैसे असरअंदाज होते हैं, ठीक है। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।